Okay, just in a brief, a quick revision. Name the types of softwares. Name the types of softwares. Milan. Name the types of softwares. Ma'am, may I answer? Yes, Archita. Ma'am, system software, application software. System software and application software. Name the types of system software. Name the types of system software. Operating system, System, language processors, language utilities. processor, device, drivers, utilities. Okay, name the types of system softwares. Operating system, utilities, and language processors. Operating system, utilities, and language processor. The types of language processors. Yes, Ma'am, Milan? interpreter, compiler, and assembler. Very good. The types of translators are interpreter, compiler, and assembler. Yes, Sarthak, examples of operating system. Ma'am, can I answer? Sarthak, examples of operating system. Ma'am, may I answer? Hanji. Windows, iOS, MS-DOS, Linux, Unix. Okay. The next is the types of utilities. Vanshika. Types of utilities. Utilities. What are the types of utilities? Ma'am, antivirus, disk compressions. Disk Excuse me. management, Ma'am, disk text management, editors. device driver, software, Text editors. softwares. antivirus, Examples of text decryption, editors. encryption, decryption, MS Word, Examples of text editor. Word, MS Word, MS Word, or Google Docs. टेक्स्ट एडिटर्स पूछ रही हूँ बच्चे, मैं वर्ड प्रोसेसिंग्स नहीं पूछ रही. आई एम आस्किंग टेक्स्ट एडिटर्स. Notepad. Ma'am, Notepad plus. Notepad 2, GE editor. Notepad, Notepad plus plus, Notepad 2, gedit. Vanshika, sleeping today? Examples WordPad. of antivirus softwares. AVG, Examples Avast, Norton, Avast, McAfee. Norton, Quick Heal. Quick Heal, Avast, Norton, Norton. K7, Bitdefender, AVG. Avira. Examples of encryption and decryption softwares. BitLocker, LastPass, वंशिका पढ़ लो बच्चे, Seven, रिवाइज कर लो. Ma'am, नहीं आते तो. Veracrypt. 7-zip. endpoint encryption. Examples of encryption and decryption softwares. 7-zip. BitLocker, BitLocker. endpoint encryption. LastPass. LastPass, 7-zip, Teracrypt. Yes, Lavlina. BitLocker. Examples of disk management softwares. Free Commander, Yes, Windows Explorer, Commander, Explorer, Pathfinder, and Directory. Pathfinder, Explorer++. Windows Explorers. Now next, types of application softwares. General purpose, special purpose, Special customized, purpose. and mobile applications. Application. General purpose, special purpose, mobile application software, Mobile and application. customized softwares. Rizul, don't write in the chat box, answer it. Unmute yourself. What are the types under the general purpose application softwares? word processing software, spreadsheets, database management, Spreadsheets, graphics, multimedia, and presentation software, application. processing software. Word processing, spreadsheet, presentation, and DBMS softwares. Now is the question for Lavlina. Examples of word processing software. Any two examples? Word Perfect and MS Word.
Harnoor, question for you. 2 examples of spreadsheet softwares. Ma'am, can I answer? Yes, Harnoor. Ma'am, can I answer? Can I answer? Anji. Excel, Open Office dot Numeric, Lotus 1, 2, 3. MS Excel, 1, 2, 3. Google Docs, Spreadsheet softwares, बच्चे. Ma'am, Lotus Spreadsheet 1, means 2, 3. MS Excel, Excel. MS Excel, Lotus 1, 2, 3. Lotus 1, 2, 3. Numeric, Now next, today we have to study special, ORG. that is Kelsey. Yes, that is Kelsey. Now the next is special purpose application softwares. Special purpose softwares, which I told you yesterday, the softwares which are used to perform a specific, a designated task. So the examples of the special purpose you can see on the screen, that is accounting management softwares, reservation software, attendance, payroll, inventory control, and billing. Now let's discuss them one by one. Accounting managed softwares are the softwares which are used in the various financial applications. जो financial applications में आपके softwares use होते हैं, those are called accounting management softwares. For example, अगर किसी के father accounts department में, तो आपने कभी ये term सुनी होंगे घर पे भी कि accounts में they are used to create financial applications such as they are creating ledgers, they are creating journal entries, accounts statements. So all these statements which can be done with the help of some softwares online, electronically on the computers. So these softwares are called accounting management software. Clear? The meaning of accounting management is clear. When you want to process various financial statements, जितनी भी financial statements है, financial accounts की statements आपने handle करनी है, उनको manage करना है. So we can manage with the help of accounting management software. Next are the reservation systems. Reservation systems means the softwares which are used for reserving the tickets. Have you used the website Book My Show? किसी ने use करी है ये? जब the scenes was normal, the scenario was normal, no COVID such things was like there. तो आप लोग online movies की tickets book करते थे before going to the PVRs. वहां से जाके मैनुअली टिकट्स लेने की बजाय हम डायरेक्टली सेल फोन से ऑनलाइन बुक माई शो पे जाके अपनी टिकट्स रिजर्व करते हैं. सिमिलरली आप ट्रेन्स की टिकट रिजर्व करवाते हो ऑनलाइन, एयरलाइंस की टिकट्स हम रिजर्व करते हैं. ठीक है. So the systems which are helpful in reserving the tickets for a particular thing, either you are reserving the tickets for the movie, for the railways, for the airlines. तो ये सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली सिर्फ उसी काम के लिए ही बने होते हैं. ये सिर्फ उसी के अंदर ही डील करेंगे. ऐसा नहीं है कि आप रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर टाइपिंग कर रहे हो, रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर कैलकुलेशंस कर रहे हो स्प्रेडशीट वाली. नो, वी कैन जस्ट ओनली रिजर्व द टिकट्स. आप सिर्फ उसमें यही डालोगे द डेट, जिस डेट की आपको टिकट रिजर्व करनी है, नंबर ऑफ पीपल, फिर कॉस्ट आ रही होगी पर टिकट के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली ये सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं. उसमें ये सारे पैरामीटर्स पहले से ही सेट करे होते हैं. So such softwares are called reservation systems. Next is the HR management. HR means human resource. हर कंपनी, जितनी भी बड़ी बड़ी IT सेक्टर्स की कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे एक HR पर्सनल होता है. HR पर्सनल. HRs का काम क्या होता है? जब भी कोई पर्सन आ रहा है न्यू कंपनी के अंदर, उसका इंटरव्यू कंडक्ट करवाना, इंटरव्यू की डेट फिक्स करना, उसको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट होगा, उसको कितनी सैलरी पे की जाएगी, और whatever the terms and conditions for the organization they have to do. So this comes under the HR personnel. तो HR जो होते हैं उनका ही ये काम होता है कि उन्होंने अटेंडेंस देखनी है एम्प्लॉइज की और पेरोल देखनी है. जो भी एम्प्लॉय HR जो उसको अपॉइंट कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है, जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं फर्म के अंदर, सो HRs आर बेसिकली रिलेटेड विद द अटेंडेंस. उन्होंने पूरे के पूरे एम्प्लॉयज की अटेंडेंस देखनी है. अटेंडेंस फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज द एम्प्लॉयज वर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर मंथ. एक मंथ में कितने दिन उसने अटेंड करे हैं, कितने दिन वो एब्सेंट था, कितने दिन उसने हाफ डे लिया है, कितने दिन उसने शॉर्ट डे लिया है.
कितने दिन में ही इज लेट, तो लेट के अकॉर्डिंगली भी कोई कंडीशन सेट की होगी, ठीक है। सो अटेंडेंस मीन्स यू आर मार्किंग, यू आर रेगुलेटिंग द डेली अटेंडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये डेटा सारा कुछ फीड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने हमारे स्कूल में भी देखा होगा बायोमेट्रिक्स लगे हुए हैं, टीचर्स वहां पे आके थंब के साथ अटेंडेंस लगाते हैं। क्लियर? व्हाट दे यूज टू डू, दे जस्ट पंच द मशीन, ऑटोमेटिकली हमारी इंफॉर्मेशन चले जाती है सिस्टम के अंदर दैट दिस एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज मार्क्ड द अटेंडेंस ऑन दिस डेट एट दिस टाइम। एवरीथिंग इज नोटेड डाउन इलेक्ट्रॉनिकली, टाइम भी आ जाता है, पर्सन का नेम भी आ जाता है, डेट भी आ जाती है। उसके अकॉर्डिंगली फॉर अ मंथ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्किंग डेज फॉर अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयर। So attendance systems are helpful in marking the attendance online. Computerized attendance is there. Second is payroll. Payroll means अब जितने number of working days एक employee ने काम किया उसके accordingly per day जितने पैसे बन रहे होंगे, तो number of working days के accordingly you will be paying amount, you will be paying salary to employee. So that is payroll. Payroll simply means salary. ठीक है, किसी को पे करना है हमने, तो हम उसकी सैलरी बना रहे हैं। सैलरी रिकॉर्ड कैसे बनेगा? पेरोल के अंदर पहले सारी अटेंडेंस इंफॉर्मेशन आएगी कि कितने नंबर ऑफ डेज उसने अटेंड किया, किस पर्सन की एक दिन की कितनी सैलरी है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वर्किंग डेज द पेरोल विल बी जनरेटेड, द सैलरी स्लिप्स विल बी generated. So this will help in recording the daily tasks such as recording the employees detail, working out the employees detail, उसकी कितनी डिडक्शन करनी है आपने, अगर आपने कोई उसकी पेस काटनी है, कोई सिक लीव्स काटनी है, या कोई भी आपने टैक्स काटना है, सो ऑल द कैलकुलेशंस आर डन अंडर द पेरोल सिस्टम। अटेंडेंस एंड पेरोल्स आर क्लियर? अभी तक हमने अकाउंटिंग मैनेजमेंट, रिजर्वेशंस, अटेंडेंस एंड पेरोल, वी हैव डिस्कस्ड दीस 4 सॉफ्टवेयर्स। ये चारों सॉफ्टवेयर्स क्लियर है बच्चे? एटलीस्ट रिप्लाई, इफ यू डोंट वांट टू गिव आंसर, रिप्लाई तो दे ही सकते हो यस नो में कि वो भी आपको बोलने में प्रॉब्लम है। The next is inventory control system. Inventory control system means stock management. Stock management, okay. Stock means किसी भी फर्म का कितना फर्नीचर है, कोई भी इन्वेंट्री है, हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल। अब इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, फर्म के अंदर कितना सारा फर्नीचर और कितना सारा इन्वेंट्री, कितना सारा स्टॉक पड़ा है, तो ये सारी चीजें की हमें मैनेजमेंट करनी पड़ती है। देखना पड़ता है कितना हमारे पास डेटा अवेलेबल है, कितना फर्नीचर आउटडेटेड है, कितना दोबारा बनने वाला है, कितना ठीक होने वाला है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम फीड करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मेडिसिन की बात करूं तो मेडिसिन में क्या क्या होगा, कितनी मेडिसिन एक्सपायर हो गई है, उसका कितना स्टॉक न्यू लेने वाला है, ठीक है, कितना स्टॉक जो एक्सपायर होने वाला है, जो एक्सपायर हो चुकी हुई है। सो ऑल दीज थिंग्स टू बी फिटेड, यू नो, इन अवर स्कूल आल्सो वी यूज टू मेंटेन दिस स्टॉक एवरी ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हर ईयर के एंड में, न्यू ईयर के स्टार्टिंग में, न्यू सेशन की स्टार्टिंग में वी यूज टू कंट्रोल, वी यूज टू मैनेज इन्वेंट्री, कि हमारे स्कूल के जितने भी डेस्क है, कितने डेस्क है जो पॉलिश होने वाले हैं, कितने डेस्क है जो खराब हो गए हैं, जो कितने डेस्क है जो न्यू बनने वाले हैं, डाइस न्यू लेने वाले हैं, कोई फैन खराब हो गया, कोई फैन की रिपेयरिंग होने वाली है। सो मैनेजिंग द इन्वेंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। सो इन्वेंट्रीज के अकॉर्डिंगली जितना हमारा रॉ मटेरियल न्यू लेने वाले हैं, जहाँ न्यू चीजें लेने वाले हैं, तो उसका कितना एक्सपेंस पड़ेगा। कुछ चीज आपने न्यू लेनी तो उसका एक्सपेंस भी तो होगा ना, है ना, तो वो चीजें भी सारी हम रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर। It is basically dealing with the inventory of the organization, stocks. Last one is the billing system. Billing system means the bills that we are used to pay at a particular shop. आप सुपर मार्केट्स में जाते हो, कोई भी शॉप पे जाते हो, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, होटल्स में जाते हो, तो आप बिल्स देते हो। Whatever the things you have ordered, they are feeding the things into the computer. आपने जो जो चीजें ली होती है वो कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिकली वो फीड करते रहते हैं कि आपने ये चीज ऑर्डर करी है, ये चीज कितने रुपीस की, और आपने इसकी कितनी क्वांटिटीज ऑर्डर करी। अकॉर्डिंगली एट लास्ट द बिल विल बी जनरेटेड।
सेम इन द केस ऑफ द सुपर मार्केट्स, आप सुपर मार्केट में बल्क में जब सामान लेने जाते हो तो काउंटर पे विद द हेल्प ऑफ हैंड हेल्ड स्कैनर्स वो स्कैन करते हैं ना बारकोड स्कैन करते हैं और आपकी आइटम्स ऐड होते जाती हैं। एंड लास्ट में अगर कोई डिस्काउंट या कोई ऑफर अवेल हो रहा है तो ऑफर अवेल करके डिस्काउंट देके द फाइनल अमाउंट, द फाइनल बिल हैज बीन जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली। आप क्विक स्लिप देते हैं ना, बिल जनरेट होते हैं ना, जो फिर उसके बाद आप अमाउंट पे करते हो। सो दैट सिस्टम्स आर कॉल्ड बिलिंग सिस्टम्स। अब देखो जो सुपर मार्केट्स में कंप्यूटर, उसमें कोई आप जाओ और आप वहां पे जाके MS वर्ड में टाइपिंग कर सकते हो? कैन यू डू द स्लाइड्स ऑन दैट कंप्यूटर? आप बना सकते हो प्रेजेंटेशन? वो कंप्यूटर्स टच स्क्रीन और वहां पे सिर्फ बिलिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जहां पे सिर्फ प्रोडक्ट्स की बिलिंग होनी है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पड़ी है, प्रोडक्ट का प्राइस पड़ा है, अगर उस प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट अवेलेबल है तो उसकी इंफॉर्मेशन होगी बस। एंड एट लास्ट द टोटल बिल विल बी जनरेटेड। तो मीन्स ये सॉफ्टवेयर, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह का काम कर सकते हैं। सो दीज आर नॉट वर्सेटाइल, they can perform only the designated task which has been assigned to them। जिस कंप्यूटर के अंदर जौन सा भी सॉफ्टवेयर डला होगा वो सिर्फ वही काम करेगा, वही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अदर देन दैट इट कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन। क्लियर? इज इट क्लियर? स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर क्लियर टू एवरीवन? ऑल द 6 सॉफ्टवेयर्स। नाउ नेक्स्ट इज द mobile application softwares. The mobile application softwares are the softwares which are specifically designed to run on the mobile phones only, जो आपके सेल फोन में ही चलते हैं। आप प्ले स्टोर से कितनी सारी एप्स डाउनलोड करते हो, एंड दो स्टूडेंट्स हु आर यूजिंग एप्पल आईफोन तो उनके पास ऐप स्टोर होगा, एंड्रॉइड यूजर्स की सेल फोन में प्ले स्टोर होगा। तो सो मेनी एप्स you are going to download it from the play store or the app store. The applications, the softwares, the apps that are only run on the mobile platform. So such softwares are called mobile application softwares. So under this, the first one is the utility apps. For example, alarm set करते हो, daily alarm, clocks are there, calendars are there, आपके सेल फोन में calendars की apps आप डालते हो, आपने कोई notes लेने हैं, reminders बनाने हैं, तो ये सारी हमें utilities हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी एफिशिएंसी शो करते हैं कि हमने कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करना है, बट वी आर सेटिंग इन एडवांस। जैसे हम अलार्म्स लगा रहे हैं, हम कैलेंडर पे किसी का बर्थडे सेट डेट कर रहे हैं कि हमें रिमाइंडर ऑटोमेटिकली मिल जाए, ठीक है? तो दीज आर दी यूटिलिटी एप्स। नेक्स्ट आर दी गेमिंग एप्स। सो स्टूडेंट्स आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गेम्स की एप्स आप अपने सेल फोन में डालते हो। सो मेनी गेम्स, पबजी तो सबको ही पता होगी, है ना? So many gaming apps when you installed in your cell phone from the Play Store or the App Store, such as Angry Bird is there, PUBG is there, और कौन सी खेलते हो? लूडो खेलते हो। So many gaming apps are there, so you can write any apps. Next are the entertainment apps. हमने अपने सेल फोन में entertainment apps भी डाली होती हैं for our entertainment, for our enjoyment, for our fun sake। आप ऑनलाइन सीरीज देखते हो, वेब सीरीज, मूवीज देखते हो हॉटस्टार पे, डिज्नी स्टार प्लस पे, स्पॉटिफाई आर देयर, गाना इज देयर, है ना? सो दीज आर दी एंटरटेनमेंट एप्स। जैसे आपने यूट्यूब की भी ऐप डाली होती है, क्लियर? सिमिलरली आपने शॉपिंग एप्स भी डाली होंगी। सो 5th कैटेगरी यू कैन मेक शॉपिंग एप्स, जिसमें शॉपिंग की वेबसाइट्स के आपने एप्लीकेशंस डालते हो। द लास्ट वन इज द सोशल नेटवर्किंग एप्स। फॉर एग्जांपल स्नैपचैट सबने डाला होगा, है ना? सोशल इंटरेक्ट करने के लिए सबके अपने क्लास ग्रुप्स बने होंगे। फेसबुक इज देयर, इंस्टाग्राम हैंडल्स आर देयर, ट्विटर्स। तो हर सोशल नेटवर्किंग साइट की एक एप्स भी आती हैं। यही साइट्स का वेबसाइट आप डाल के लैपटॉप्स कंप्यूटर में ओपन करते हो, बट डायरेक्टली बाय यूजिंग अ सिंगल क्लिक आप इनके एप्स के ऊपर ओपन करके यू कैन जस्ट हैव अ सर्च ऑन दीज वेबसाइट्स। तो ये सारी एप्स आपको कहाँ पे मिलती हैं? प्ले स्टोर या ऐप स्टोर। मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ये तो टॉपिक आपके इंटरेस्ट का था, सारा दिन सेल फोन हाथ में होता है ना? नो? सो एनी डाउट इन दिस टॉपिक? दिस टॉपिक इज क्लियर? वंशिका, ये टॉपिक क्लियर है? यस? विच गेम यू प्ले इन योर फोन? आपने कौन सी गेमिंग ऐप डाली हुई है? डाली हुई है फोन में? No? Okay, so she's very sincere, very good बच्चा she is, है ना? So good.
Okay. The last is the customized softwares. Customized softwares are also called tailor-made softwares. Tailor-made softwares, the softwares which are made as per the user requirement. So these softwares are not readily available. ये softwares पहले से ही नहीं बने होते हैं. ये softwares को बनाना पड़ता है according to the need and requirements of a particular organization or a particular firm. अब हर organization की requirement अलग-अलग है. अगर आप बोलो कि मुझे एक कैलकुलेशन करनी है, वो तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया, वो तो सबको मिल जाएगा ऑनलाइन. ठीक है. अगर कोई फर्म कह रही है कि मुझे अटेंडेंस लगानी है अपने एम्प्लॉइज की, तो वो भी मिल जाएंगे. जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाते हैं डेवलपर्स, ये सॉफ्टवेयर पहले से बने होते हैं. यू जस्ट हैव टू पे एंड यू विल गेट द अटेंडेंस मैनेजमेंट एंड यू कैन इंस्टॉल इन योर सिस्टम, यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट. बट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में ये डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं. जैसे कोई कंपनी है, कंपनी कह रही है कि मेरी कंपनी में ये डेटा है, ये डेटा के अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए. सो ही और शी विल स्पेसिफाई दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज और हर ओन ऑर्गेनाइजेशन. तो वो फिर कस्टमर्स को डेवलपर्स को बनाना पड़ता है. ठीक है. तो ये सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं. तो जो सॉफ्टवेयर हमें शुरू से बनाने पड़ेंगे, हम उनको कहते हैं स्क्रैच. The software that are to be built from the starting point, that is called scratch. और ये एक फेज से निकलते हैं, that is called SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. की एक सिस्टम को बनाने में कितना साइकिल लग रहा है, कितना लाइफ साइकिल लग रहा है. So it is designed to meet the requirements of the user. The advantages of such softwares are that the company will get the exact software what they needed. अगर आप रेडिली अवेलेबल कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो उसमें तो सारे फीचर्स होंगे. इट विल बी वर्साटाइल, इट कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ जॉब्स. बट हमें तो एक डेजिग्नेटेड टास्क चाहिए, हमें तो एक स्पेसिफिक टास्क चाहिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीट कर रहा हो. तो दैट मीन्स ये सॉफ्टवेयर बनाने से हमें एडवांटेज क्या मिल रहा है कि वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स. सेकेंडली, this software will work as per the requirements of the organization. जैसे हम चाहते हैं वैसा ही वर्क करें. Clear? The name of the life cycle is SDLC, System Development Life Cycle. अगर आप आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाएंगे ना, तो आप इसके स्टेप्स भी पढ़ेंगे कि SDLC में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने में कौन कौन सी स्टेप्स लगते हैं. It comes 7 to 8 steps are there जो इतना फॉलो करके और एक सॉफ्टवेयर बनता है. और ये नहीं है कि एक महीने में सॉफ्टवेयर बन जाएगा. सॉफ्टवेयर नीड्स 7 to 8 months along with the lot of employments. Okay, so software will have only that features. सिर्फ उसके अंदर वही फीचर्स और वही टास्क परफॉर्म होंगे जो एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड रहेगी. बट इसके डिसएडवांटेज ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि ये सॉफ्टवेयर स्क्रैच से बनने हैं, शुरू से बनने हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर बना ही नहीं होगा. तो ये सॉफ्टवेयर को बनाने में इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू मेक सच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. अप्रोक्सीमेटली मंथ्स और ईयर्स लग जाते हैं सॉफ्टवेयर बनाने में. प्लस जितना ज्यादा टाइम लग रहा है, आपको उतनी लेबर भी चाहिए होगी, उतनी लेबर फोर्स चाहिए, उतना रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, उतनी आपको सारे इनपुट्स भी चाहिए. तो अगर इतने इनपुट्स चाहिए, इतनी एम्प्लॉयमेंट फोर्स, इतना लेबर फोर्स लगा रहे हो, तो उतनी सैलरीज भी तो लगेंगी, उतने फंड्स भी लगेंगे. तो इट विल बी कॉस्टली ऑल्सो as comparatively to the other softwares. So there will be a little user support in such kind of software. अगर दूसरे सॉफ्टवेयर है जो रेडिली अवेलेबल हैं, वो अभी तक कितनों ने यूज कर लिया होगा और उसमें कितनी सारी अभी तक चेंजेस भी हो गई होंगी. यूजर सपोर्ट इज ऑल्सो देयर, कस्टमर सपोर्ट्स विल बी देयर. अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको रेक्टिफाई करा सकते हो, कुछ चेंज कर सकते हो. बट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो बननी स्पेशली रहा है, 1 साल लगा के बन रहा है, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद हमें पता चलेगा कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं या ये चीजें और हो सकती थी. उतना ही उसका यूजर इनपुट और कस्टमर सपोर्ट कम हो जाएगा. इट विल अगेन टेक another year to readily available for the customer supports, है ना. So these softwares can be directly installed at the users workspace. अब ये देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सॉफ्टवेयर बना है. So it does not mean कि ये हर किसी के कंप्यूटर पे चल रहा है. जिसके कंप्यूटर के लिए ये बना है सॉफ्टवेयर, सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया होगा, उसकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग.
अब हो सकता है जिस सिस्टम के लिए हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया था उसमें हार्ड डिस्क इतनी थी, रैम इतनी थी, और यही सॉफ्टवेयर अभी कहीं और पे चल ही नहीं रहा हो, तो दिस विल ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम. क्लियर? So customized software, the meaning is clear, the merits and the demerits. The time is up and we will discuss the assignment in the next class. Okay.